हेलो एवरीवन, आई एम राना। वेलकम टू थिंकर गाइड। ये कम्युनिटी है जहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स शेयर करते हैं उनके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड दे टॉक अबाउट करंट मार्केट नीड्स विद जूनियर डिज़ाइनर्स। जैसा कि आप जानते ही हैं, AI इज़ इवॉल्विंग रैपिडली एंड अब डिज़ाइन रोल सिर्फ डिज़ाइन तक सीमित नहीं है। यू हैव टू इवॉल्व एज अ थिंकर। यहाँ हम बात करते हैं कौन से स्किल सेट अर्जेंटली रिक्वायर्ड हैं to stay ahead in AI dominance. Without further ado, let's move on to our first conversation on Thinker Guide, junior roles and the gap from India to global. मेरे साथ हैं आज दीपक भारती. He's from Canada. He's a customer experience and UX leader with over 10 years of experience in designing product and services, currently leading experience for 2 learning platforms. इनका डिज़ाइन बैकग्राउंड काफ़ी डाइवर्स है। ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, ऑटोमेटिव, हेल्थ केयर। ही डिज़ाइन एवरीथिंग फ्रॉम एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म टू कंज्यूमर एप्स, फ्रॉम क्रिएटिव एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम कैनेडा बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम वैंकूवर। ही लव्स मेकिंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स सिंपल थ्रू डिज़ाइन। दीपक कहते हैं डिज़ाइन फॉर इम्पैक्ट, enhancing every step of the user experience. He streamlined Apple India's design workshop. He set up systems in a logistic company, saving $300 and increasing revenue by 10%. In personal life, he is very chill. He says, I love to travel and paddle boarding during summers in Canada, जब budget allow करे. What a beautiful story, Deepak, from balancing personal and professional life. You started your journey in India and now you're thriving in Canada. This is so inspiring. Welcome, Deepak. Welcome and thank you for joining us today. Really excited for this conversation. So, how are you? Let's I'm start. good, Renu. Thank you for inviting me. I'm really excited for this new journey of yours. I'm really excited too. So, first question is, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए. What inspired you to become a designer? How did all started? Your college days and what was your initial years like? That's an interesting question you have asked. So, actually, I became designer by accident, I'll say. And like it wasn't in my plan when I was in school. I always wanted to become a doctor, and I was studying for it. I, in fact, cleared my exam, but when I got into it, I realized like this is something I can't do. I can't be a doctor. Like I just figured it out in the first month itself, and I just left it. Then basically I tried for multiple things back then, uh, like we didn't have any proper ऐसे ना इंटरनेट सुविधाएं नहीं थी हमारे पास कि like you can just go on ChatGPT and ask what you can do. तो बुधवार वाला अखबार आता था, उसमें नई नई जॉब्स के बारे में पता लगता था। तो आई ट्राइड मल्टीपल थिंग्स ऐसे, नॉटिकल साइंस, एट वन पॉइंट आई वांटेड टू बिकम अ फैशन डिजाइनर. So eventually, like what happened, like my dad, he was a doctor in the army, and side by side uh, उनकी हॉबी थी पेंटिंग करना. तो he basically told me like do something in design. So like that's how I got into design. Like I was good with paintings and all, watercolor, oil paint. I was good by myself, but तब मुझे इतनी knowledge नहीं थी कि what exactly I'm going to do. So I like enrolled myself in a multimedia and animation program. Uh, Back then, like they were very limited institute who used to provide it. So I did that with Arena. In fact, I did my bachelor's in multimedia and animation, and like that's how my overall career started. Uh, but the education that I received, it was completely different from the job market.
बिकॉज मल्टीमीडिया एनिमेशन आपको सब कुछ सिखाया जाता है। और इंडिया में फोकस, आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 टू 2012, सो उस टाइम पे फोकस वाज टूवर्ड्स लर्निंग द टूल्स, जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर सीखना है, आफ्टर इफेक्ट सीखना है, प्रीमियर प्रो सीखना है, ड्रीम व्यूअर। तो फोकस वाज ऑन लर्निंग द टूल्स। ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता था कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एंड तब ये भी क्लियर नहीं था कि व्हाट आई वांटेड टू डू। मैं, कोई भी मेरे से पूछता था कि आप क्या कर रहे हो, तो किसी को समझाता था तो उनको समझ नहीं आता था। फिर मैं बोलता था कि हाँ मैं ऐसे कार्टून ड्रॉ करता हूँ। Okay. तो उस तरह से हुआ, बट इवेंचुअली आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब। आई डिड मल्टीपल इंटरव्यूज। आई स्टार्टेड विद अ ई-कॉमर्स कंपनी, Deal and You. It was under Smile Group, and it was a good learning platform for me, as I started off as a graphic designer working on campaigns. धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी कि मार्केटिंग क्या होती है, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, कंज्यूमर माइंडसेट क्या होता है। लाइक those were the learning that came with the job. That's so true. And in my case, my journey was very different. मैं जब स्कूल में थी, I was in 12th, I still remember मेरे एक art teacher थे. So he told me that you are good with drawing, so go in finance. So it was like that. So Uh, when we first year finance किया, then I was like, नहीं, कुछ और explore करना, I'm not satisfied right now. Because वो एज ही ऐसी होती है, I think आप explore करना चाहते हैं English में. बिल्कुल। So what I did, so इसके बाद मैंने I moved to commercial art. And actually, I started taking interest because अभी ताकि hands-on तो होते थे, साथ में transfer those to Photoshop, Illustrator, and आप वहाँ कुछ create करते थे. तो paint और digital का भी combination था, that was fascinating. And then I got a opportunity in advertising, so yeah, it started like that. I was still True. exploring that. So I cannot say that जो मेरा mindset था कि मुझे वही करना है, ऐसा कुछ नहीं. I think initially सभी का struggle होता है, आपका भी हाँ, वैसे ही था. हाँ, स्ट्रगल स्ट्रगल रहता है। लाइक आई थिंक एक ये भी था कि फैमिली में कोई उस तरह का सपोर्ट नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था कि जिन्होंने इस तरह की फील्ड में काम किया है। एंड लाइक प्रॉपर गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं थी। सो वी वर जस्ट लाइक हिट एंड मिस हो रहा था कि लाइक देयर वाज, आई वाज लाइक टारगेटिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड कहीं पे हिट हो जाता, कहीं पे मिस हो जाता था। आई रिमेम्बर मैंने जब अपने इनिशियल इंटरव्यूज भी दिए थे तो एक जगह आई गॉट अ जॉब एट स्नैपडील। एंड स्नैपडील में आई डिड अ वॉक इन इंटरव्यू। दे वर लाइक ऐसे 25-30 लोग लाइन में लगे थे इंटरव्यू देने के लिए। एंड इट वाज जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय एनिमेशन थिंग। ऑल्दो दोज गाइज दे वर पेइंग मी मोर, बट तब वहां पे काम क्या होता था कि बेसिकली स्नैपडील में आपको इमेजेस जो प्रोडक्ट की होती है उनका बैकग्राउंड रिमूव करके वो देनी है। लाइक नेकलेसेस हो गए, चश्मे हो गए। तो मैंने कहा यार ये क्या काम है। ये तो ऐसे जो होते ऑपरेटर टाइप वर्क, लाइक दिस इज नॉट क्रिएटिव। एंड आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे टूल्स भी उतने एडवांस नहीं थे कि अब लाइक यू जस्ट अपलोड अ इमेज इन अ गूगल एंड आस्क लाइक रिमूव द बैकग्राउंड, क्रिएट अ पीएनजी आउट ऑफ इट, हो जाता है। हाँ, Very तब तो हाँ. हम वो ऐसे क्या बोलते हैं, फोटोशॉप में लैसो टूल से ऐसे ऐसे पिक्सल्स बना बना के एक एक इमेज पे। तो आई वॉज ऑलवेज क्लियर इन अ वे कि मेरे को क्या नहीं करना है। अगर मेरे को डिजाइन में ही जाना है तो मेरे को इस तरह की जॉब नहीं करनी थी। कहीं ना कहीं आई वांटेड कि मेरे को थोड़ी सी लाइमलाइट मिले, ऐसे फ्रंट फेसिंग रोल पे रखूं मैं, ना कि बैक एंड पे। अगर मैं डिजाइन में ही हूं तो लाइक पीपल शुड बी अवेयर, ओके दिस वर्क इज डन बाय दीपक, दीपक शुड नो मी इन द कंपनी।
तो वो मेरा एक हमेशा से था। तो शायद इसलिए मैंने पहले ही फिल्टर आउट कर लिया कि मेरे को ये काम नहीं करना। आई टुक माई टाइम। आई वॉज अनएम्प्लॉयड फॉर गुड 3-4 months, but then I found this job. So like that's how I grew in my career. The inspiring stories starting from the beginning. Now you are thriving in Canada, so it's like really inspiring story. Okay, so let's move on to our next one. What was your biggest challenge as a junior designer during your early years in India? Hmm. So I think honestly I'll say कि biggest challenge that I feel is कि जब आप कुछ कहना चाहते हो, like you are not being heard, be it I'll say in your family, in your friends, and even in your professional life. Uh, तो आई गेस लाइक दैट वाज, मेरे केस में ये था कि पर्सनल लाइफ में आई वाज वेरी सॉर्टेड, बट प्रोफेशनल लाइफ में इनिशियली आई फेल्ट कि आई वाज नॉट बीइंग हर्ड टू मच। क्योंकि एज अ जूनियर डिजाइनर जब आप ज्वाइन करते हो तो यू आर सीन एज एन एग्जीक्यूटर, कि हर कोई बस आपको है ना काम दे देता है, टास्क दे देता है कि ये करना है। कोई लेकिन आपको उसके पीछे का आइडिया नहीं देगा, कि कोई आपसे आइडिया नहीं पूछेगा, कोई कैंपेन है। सो उसमें बेसिकली दे विल लाइक, जो भी सीनियर्स होते थे, मार्केटिंग के लोग होते थे, दे विल डिसाइड व्हाट द कैंपेन गोइंग टू बी, और वो आके तुमसे बोल देते हैं ओके मेरे को ये ना कॉफी, कैफे कॉफी डे का ऐसा बैनर बना के दे दो, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो एंड तब मेरे को ऐसा था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो दे वर लाइक कि नहीं, मैंने जैसा बोला है मेरे को ऐसे ही चाहिए। तो वो एक इनिशियल था कि शुरू के 1-2 साल में आई वॉज मोर ऑफ एन एग्जीक्यूटर, एंड आई से कि एग्जीक्यूट करते करते धीरे धीरे व्हेन यू आर वर्किंग विद डिफरेंट कैंपेन्स, तो यू ऑल्सो टेंड टू अंडरस्टैंड कि क्या कंज्यूमर है, आपकी क्या मार्केट है, आप किसको टारगेट करने वाले हो। फिर कई बार आपको अपने आप से भी सवाल पूछने होते हैं कि मान लो कोई कैंपेन है तो यू जस्ट गो एंड स्पीक टू द मार्केटिंग पर्सन कि अच्छा ये वाली कैंपेन कैसे चली, कि अभी हमने ये कूपन अगर हमने 1 महीने के लिए लाइव किया था तो कैसा रहा। एंड लाइक आई हैव डन ऑल सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स। मुझे याद है कि तो हमारा एक फेसबुक पेज होता था ड्रीम्स एंड यू का, एंड उसमें मैंने काफी ऑर्गेनिक ग्रोथ करी थी। सो वी डिड मल्टीपल कैंपेन्स, एंड वन कैंपेन वाज कि उसमें हम दिल्ली में प्रमोट कर रहे थे, तो वी वर टेलिंग पीपल कि आप दिल्ली के बेस्ट एरिया जो भी आपको दिल्ली अच्छी लगती है आपके नजरिए से, उसके फोटोज डालो एंड विल गिव यू अ कैमरा। एंड वो कैंपेन हमने 1 महीना चलाई थी, काफी अच्छी चली थी। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम लाइक फेसबुक ही होता था, और कोई टूल था भी नहीं कि आप इंस्टा पे कर रहे हो, किसी और चीज पे कर रहे हो, बस फेसबुक था। एंड फेसबुक पे वो काफी अच्छी चली। विद इन अ मंथ जो कंपनी का जो फेसबुक पेज था उसकी फॉलोइंग इट इंक्रीज बाय लाइक 30K 1 महीने में, विच वॉज अ लॉट। एंड so this was my idea and I was able to execute, but not in my initial year, but in my second year. And उससे पहले I did very lot of mistake. Uh, एक आइडिया था जहाँ पे हम QR कोड फेसबुक पेज के जो बैनर्स होते थे किसी भी डील के, हम उसमें QR कोड लगाते थे किसी बैनर के साथ में, लाइक जस्ट स्कैन एंड यू विल रीच डायरेक्टली, आप डील पेज QR पे ले कोड बहुत जाओगे। ज्यादा सही हाँ। तो मैंने क्या किया, तो मेरे को ये नहीं पता था कि जो आप QR कोड जनरेट करते हो वो हर चीज के लिए अलग होता है। तो मैंने सभी बैनर्स पे लाइक अगर मसाज की सेम। डील्स है तो उस पे भी कैफे कॉफी डे का QR कोड लगा हुआ है। कोई टेक टेक का बैनर है उसमें भी। तो मैंने बस एक
क्यूआर कोड अपना बना रखा था। मैं उसी को हर जगह कॉपी पेस्ट कर रहा था, कॉपी पेस्ट कर रहा था, एंड किसी ने वो नोटिस ही नहीं करा। एंड ऐसा 1 महीने तक चला। अच्छा। लाइक फिर लाइक वी हैड अ मार्केटिंग हेड, Shikha, her name was Shikha, and like she was genuinely very sweet, very knowledgeable, and instead of like scolding me कि okay दीपक ये तुम्हारी गलती है, I could have been fired for that, कि 1 महीने तक इस तरह की, but she was like कि no, this is a mistake as a team, कंटेंट वालों ने भी इसको चेक नहीं किया, your job was to execute, you did, but किसी ने क्यों नहीं किया, मी एज अ मार्केटिंग हेड मैंने भी नहीं देखा, 1 महीने बाद मैंने, सो इट्स लाइक अ टीम फेलियर रेदर देन दीपक फेलियर। तो तब मेरे को ऐसे टीम की वैल्यू समझ में भी आई थी। सो बट लाइक धीरे धीरे आप सीखते रहते हो जॉब पे। तो गलतियों से सीखते हो आप। हाँ, गलतियों से सीखते हो, एंड गलतियां करनी चाहिए, जब तक आप नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा। Because जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरी सिचुएशन ऐसा था, लाइक यू नो, आई वाज इंट्रोवर्ट, यू नो नाउ, राइट? हम्म। सो मेरे क्या? लिए बहुत मुश्किल होता था कोई क्वेश्चन भी पूछना। द प्रॉब्लम वाज आई वाज नॉट इवन अवेयर कि क्या क्वेश्चन पूछना। Though I got really good mentor, I would say his name was Madan Pal. He was really humble person. उन्होंने कितनी कोशिश करी कि मुझे उस चीज से बाहर निकालने हुआ, बट जो मैंने समझा ना लाइफ में, दैट इज कि अगर आप खुद नहीं जानते ना बाहर कैसे आना है, कैसे हम्म। प्रोएक्टिव होना है, तो कितना बिल्कुल। भी अच्छा मेंटर हो ना, वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ट्रू। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि मार्केटिंग टीम को समझना, मेरे हिसाब से जो आज के जूनियर डिजाइनर है उनको सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा टीम में कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं, तो उससे आपको हाँ, डिजाइन बनाने की काफी हेल्प मिलता है फ्रॉम बिल्कुल। डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो चीज जो है अभी मुझे समझ में आती है, उस टाइम आई डिडंट नो अबाउट इट। तो दीपक, आपको 10 साल से ज्यादा हो गए इंडिया नाउ, फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा, so what was the biggest difference you see in junior designer role requirements between India and international? हम्म। लाइक अगर जूनियर, आई जस्ट नॉट से जूनियर डिजाइनर और सीनियर डिजाइनर, एक मेजर डिफरेंस जो मैंने फील किया है कि The general designers. जनरल एक डिजाइन में, कि हमारे यहाँ पे हम फोकस करते हैं एग्जीक्यूट करने पे, तुरंत काम करने पे। वी डोंट आस्क क्वेश्चन दैट मच कि हमने क्यों करना है, Right. वाई इज नॉट देयर। एंड वहीं ऑन द अदर एंड वाइल आई वाज इन कनाडा, तो वहां पे मैंने देखा कि लाइक कि टू थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एंड दूसरा आई से क्रिटिकल थिंकिंग, एंड दे expect you to question why are you going to do any kind of thing, like अगर आपको एक बटन का सीटीए भी चेंज करना है तो उसके ऊपर भी आपको सवाल करना चाहिए। अगर आप सवाल कर रहे हो, या एज अ डिजाइनर मैं कोई सीटीए का कलर चेंज कर रहा हूँ, तो आई शुड बी एबल टू आंसर कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और ऐसा करके मेरे को क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ। सेम अगर कोई डिजाइनर, एक डिजाइनर के तौर पे ही अगर, लाइक अजीम रेनू तुम एक कोई प्रोडक्ट पेज लेकर आते हो या कोई भी रिक्वायरमेंट लेकर आते हो, तो मेरा पहले सवाल आपसे ये होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन हमारे कंज्यूमर होने वाले हैं, एंड ये सर्टेन चीज करने से हम क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं, एंड व्हाट इफ इट फेल्स, तो हमारा प्लान भी क्या होएगा। तो इस तरह के सवाल है ना। आई फेल्ट कि इंडिया में इनिशियली नहीं पूछे जाते थे। I think it has started changing, but still, I'll say it will take a long time. And थोड़ा सा बस जूनियर डिजाइनर्स के लिए कि rather focusing on execution, थोड़ा सा critical thinking की तरफ फोकस रहे। Technical skills on the job you will learn, but critical thinking is something जिसपे आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। यू हैव टू रीड अ लॉट, यू हैव टू टॉक अ लॉट,
तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपने आप को ग्रो कर सकते हो, बट हम्म। ये एक मेजर डिफरेंस रहा है हम्म। इंडिया नहीं, एंड आप कनाडा बिल्कुल में। ठीक बोल रहे हैं। हाँ, और मैं इसमें एक चीज ऐड करूँ, सो मेरे हम्म, एक्सपीरियंस में भी मैंने भी जैसे जर्मनी से मास्टर्स जब किया था, तो मैंने भी बहुत जेंजीज मिलेनियल सबके साथ स्टडी भी किया है और एक्सपीरियंस भी लिया है। सो मैंने भी ये चीज या डिफरेंस देखी कि वहाँ जो लोग हैं ना इंटरनेशनल में, they are very open and they are very fond of like what is going on in AI, current या trends, and वो जब भी कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, दे आर नॉट लाइक कि उस पे बस आपने डिजाइन कर दिया, कुछ सुंदर सा बना दिया, नहीं नहीं, या देयर फोकस इज कि इसका एंड में बिजनेस गोल क्या होगा, आउटकम क्या या निकलेगा लास्ट में। और अगर हम देखें जैसे एआई एवोल्यूशन हो रहा है, उसके हिसाब से नेक्स्ट 2-3 इयर्स में ये चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूनियर रोल्स में भी बिल्कुल। समझना, जो इनिशियली हम देखें तो सीनियर लोगों को पता होती थी पहले, हाँ जूनियर्स को हाँ, पता ही नहीं होती थी। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में जो जूनियर रोल्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी अभी? मेरे को लगता है कि काफी रूल्स तो है ना, देखो डाइल्यूट हो जाएंगे। आई डोंट थिंक आगे हम्म। चल के जूनियर या सीनियर रोल्स रहेंगे, बिकॉज एक हम्म। नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर विल नॉट एग्जिस्ट इन द कमिंग फ्यूचर। अब बहुत सारे करेक्ट। टूल्स आ गए हैं, एआई इतना एडवांस हो गया है कि पहले जैसे होता था हम्म। कि एक सर्टेन कैंपेन के लिए मार्केटिंग 4 ग्राफिक डिजाइनर हायर करेगी, तो अब उस तरह की जरूरत नहीं है। लाइक हम्म। एक अब कंपनीज भी क्या कर रही हैं कि दे जस्ट हायर अ सिंगल पर्सन जो एआई के थ्रू कंटेंट भी जनरेट कर सकता है, स्मॉल बैनर्स भी बना करेक्ट। सकता है। करेक्ट। तो हम्म। इसमें बस ये है कि आप कितना एआई को एज अ टूल यूज करो हम्म। या एज अ थ्रेट यूज करो। So if you हम्म। like see it as a threat, then it become हम्म। impossible to like learn. And rather, if you use it as a हम्म। tool, then there are a lot of opportunities in which you can grow. अभी लास्ट 1 साल से जो मैं हम्म। प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इस मेजरली फोकस्ड ऑन हम्म। द CRO, and I've been using AI, अच्छा। and like AI has helped me in increasing the revenue of the company. मतलब मैं एज अ डिजाइनर, जो कि मेरे को हाँ। पहले उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, नाउ आई हम्म। नो कि देयर आर सो मेनी टूल्स। हाँ, हम्म। मैं वेबसाइट पे हॉटजार एनालिसिस करवाता हूँ। हाँ, देन वी हैव डेटा एनालिसिस थ्रू हम्म। गूगल। आई नो कि वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या क्लिक रेट्स है, तो कैसे हम यूजर एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं। एक बैनर चेंज करके अगर मेरे को कंटेंट की हम्म। प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट करनी है, उससे मेरा क्लिक रेट कितना इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं। अगर कोई क्विज है, हम्म। क्विज को मैं कितना आसान कर सकता हूँ, वहां पे मैं एआई का हेल्प भी लेता हूँ कि अ, कहीं पे मेरे पास ड्रॉप ऑफ है तो आई हम्म। क्विकली गो थ्रू लाइक डिफरेंट एआई टूल्स टू लाइक जनरेट एग्जिट इंटेंट सर्वेज, कि अगर रजिस्ट्रेशन पेज पे ड्रॉप है, तो हम्म। अगर यूजर इज गोइंग टूवर्ड्स द अपर टैब ऑफ द ब्राउजर क्लोज करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाए कि कंटिन्यू विद फ्री रजिस्ट्रेशन अवेल 10%। तो कैसे कैसे हम ऐसे छोटी छोटी चीजें करके ड्रॉप ऑफ रिड्यूस कर सकते हैं वेबसाइट पे, विच कैन अल्टीमेटली इंक्रीज द कन्वर्जन। तो ये सब लाइक टूल्स के थ्रू इट हैज बिकम वेरी इजी, इट हैज बिकम वेरी फास्ट। कुछ हम्म। चीजों में पहले 15-15 दिन लगते थे फिगर आउट करने में, नाउ वी कैन जस्ट डू इट इन अ डे। तो इट्स जस्ट हम्म। लाइक यू नीड टू कीप ऑन लर्निंग। अगर आपका वो लर्निंग एप्टीट्यूड रहेगा तो यू विल ग्रो। So it's like strategy thinking plus AI collaboration. So यस, AI is like a core. आपको पता होना चाहिए कि how to use that tool and when to use that tool, right? यस, व्हेन टू डू। या Yeah, yeah, that's nice. तो दीपक, कौन कौन से जो आप बोलेंगे कि एआई टूल्स हैं जो अभी मैं जूनियर डिजाइनर्स ही बोलूंगी, बिकॉज फोकस मैं उन्हीं पे कोशिश कर रही हूँ, हाँ क्योंकि वो चीजें लैक करते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी थिंकिंग के लिए एंड
डिजाइन के लिए कोई भी आप बताएं जो सजेस्ट करेंगे आप। जैसे मैं क्या बोलते हैं दो चीजें और भी करता हूँ टूल्स के अलावा। हम्म सो आई रीड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स कि इंडस्ट्री हम्म में क्या हो रहा है। सो जैसे यूएक्स डिजाइन डॉट सी सी है, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। वहाँ पे डिजाइनर्स हम्म अपने चीजें डालते रहते हैं। यू कैन हम्म इजली, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स। आपको ऐसे आर्टिकल भी मिल जाएंगे कि आप कुछ करना चाहते हो एंड देयर इज सिमिलर आर्टिकल हम्म ओवर देयर ऑन द वेबसाइट, एंड you just go हम्म there, read about it, and you can execute the same thing. इट्स नाइस। हाँ, so वाओ। usdesign.cc is something, then Medium is there. So like these two websites, these have been like, I'll say, my Bible across for like last अच्छा। 10 years. हाँ, मैं वाओ। हमेशा जाता हूँ, दिन में मैं 15 से 20 मिनट आराम से हाँ इन वेबसाइट्स पे लगाता हाँ हूँ। हाँ उसके अलावा चैट जीपीटी, यस एवरीवन नोज अबाउट इट। उसके अलावा आई यूज हम्म क्लॉड, क्लॉड डॉट ए हम्म आई, which I personally like better than ChatGPT uh, हम्म in terms of design. Uh, हम्म ChatGPT I use to create basically a story. अगर मेरे पास कोई basic idea है, so I just write हम्म it down कि uh, let's say for example, I'll give you an example of my current company, Learntastic. So over there we have multiple websites हम्म, जहाँ पे हम अलग अलग तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं, फर्स्ट एड के, सेक्सुअल अच्छा हरेसमेंट, एंड इनकी क्विज भी होती हैं। तो अगर अच्छा। मेरे को जैसे कुछ नई चीज करनी है तो आई जस्ट लाइक गो टू चैट जीपीटी एंड से हम्म लास्ट मंथ आई रिसीव्ड एन नंबर ऑफ यूजर्स on this website, and the drop off was this on this particular page. Suggest me the हम्म changes that I can do हम्म to increase the registration. And by increasing हम्म registration, my objective is to increase the conversion. और उसमें भी लाइक अगर मेरे को और स्पेसिफाई करना है कि आई वांट टू इंक्रीज द क्रेडिट कार्ड इनपुट, तो हम्म, सजेस्ट मी द चेंजेस दैट आई कैन डू। तो उस तरह के आप सवाल वाओ। करके बेसिकली यू कैन गेट अ बेसिक ड्राफ्ट रेडी, हम्म and हम्म accordingly you can create your own wireframe, or you can use this information and put it on Claude and ask हम्म Claude to like create a basic wireframe for you. So इस हम्म। तरह से। And तो मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी बिकॉज क्योंकि जो लोग नए हैं अभी डिजाइनर्स इस चीज में उनको हम्म। पता होना चाहिए कि अगर वो किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं सो वहाँ की इंफॉर्मेशन उस पे नहीं डालनी चाहिए हाँ। जो ये एआई यस। मॉडल्स हैं आप बिना उनके आपको परमिशन के। यस, आपको जैसे कि हमेशा आपने इतना अच्छा कंपनी एग्जांपल में, दिया। हाँ कंपनी से हाँ पूछना चाहिए कि क्योंकि अब सभी कंपनीज इन हाउस टूल्स दे हैव परचेज, so always use हाँ companies करेक्ट। proprietor। आपने खुद हाँ हाँ आपने खुद एग्जांपल दिया इस चीज का क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी से वो बहुत या जेनेरिक था तो उसमें जेनेरिक फिगर आउट था। नहीं कर सकते आप किस ब्रांड के लिए काम कर रहे हो। हाँ हाँ सो वो कर सकते हैं। हाँ। नाइस। और एक चीज और बोलूंगी मैं आई थिंक नोशन आपने ट्राई किया है नोशन। नोशन मैंने ट्राई किया है, नोशन इज वेरी गुड। मुझे काफी अच्छा लगा हाँ उसमें आप बहुत अच्छे से कोई भी फाइल्स हैं आपके कोई हिस्ट्री आपको रखनी है आई मीन उसको आप बाद में इजीली देख सकते हैं कि इस टाइम पे या आपने क्या किया था बिकॉज अर्लियर वी यूज टू यूज लाइक जीमेल इन गूगल हाँ, ड्राइव फॉर एवरीथिंग so things are changing now. एंड Nice. लाइक फिग्मा हैज एडवांस सो मच। हम्म मतलब अब मैंने लाइक आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग अदर टूल्स, अब मैं एडोबी यूज ही नहीं करता हूँ। मेरे अच्छा। को नहीं याद मैंने एक्चुअली लास्ट कब यूज किया था। फोटोशॉप नहीं यूज करता। वाह। I just like I'm just on Figma right now. So Figma is an amazing tool. There are a हाँ lot of things you can do, yeah. and with Figma, like you have an amazing हम्म community. Figma community where you'll get like unlimited files. You can reference.
दूसरे के हम्म, डिजाइन देख सकते हो आप, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। फिर फॉर डिजाइन इंस्पिरेशंस यू हैव ड्रिबल, बिहेंस, सो दोज आर ऑलरेडी देयर। हम्म, हम्म। मैं ये जानना चाहती थी कि आपको क्या लगता है वो बिगेस्ट गैप क्या है बिटवीन डिजाइन स्कूल एजुकेशन एंड कंपनीज which is extremely required. तो डिजाइन स्कूल में ना कंज्यूमर माइंडसेट नहीं सिखाया जाता, हम्म, सवाल करना नहीं सिखाया जाता, कि बेसिकली दे जस्ट फोकस ऑन डिजाइन, बट व्हेन यू हम्म, go to work, then you basically realize कि there's so much to it. The in हम्म, school we don't talk about cross collaboration, कि डेवलपर्स के साथ हम्म, एक डिजाइनर कैसे कोलैबोरेट कर रहा है, एक बैकएंड वाले बंदे के साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहा है, राइट, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ हम्म, कैसे कर रहा हम्म, है। तो इस तरह की चीजें, क्रॉस क्रॉस कोलैबोरेशन नहीं सिखाई जाती, सवाल सवाल पूछना नहीं सिखाया जाता। हम्म, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस्ड हैं, एंड ये बेसिकली यू लर्न व्हेन यू आर ऑन द जॉब। और बहुत बड़ा उनका वो है फैक्ट। या हम्म, राइट। एक लाइक चीज अभी, और मैं बोलूंगी जो मैंने अपने हाँ पर्सनल हाँ, एक्सपीरियंस से सीखा है, फीडबैक, टू टेक या फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार वी ऑल आर ह्यूमन, तो हमारे कई राइट, बार जाने अनजाने में आपका इंटेंट भी नहीं होता, बट किसी की ईगो हर्ट हो जाती है। कई बार यू फील कि योर सेल्फ एस्टीम इज बीइंग क्वेश्चन, एंड छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि अगर आई फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एंड सेम एट द सेम टाइम अगर कोई मेरे को फीडबैक दे रहा है, तो आई जस्ट रेदर फोकस ऑन मी, आई फोकस ऑन वी, कि हाउ वी कैन डू इट बेटर। तो वो चीज है। वन ठीक है। गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस फॉर जूनियर डिजाइनर आपकी साइड से क्या हो सकता है? हाँ। हम्म। सो इसके लिए ये कि आई सी की don't chase every trend or tool. I'll हम्म, say, uh, if you, हम्म, I'll say कि focus on timeless skills, uh, हम्म, problem solving पे ध्यान दो, how you can convey a clear story through your work, uh, हम्म, because tools can change, the fundamental हम्म, skills it will remain the same। कि हम्म, मेरे को याद है व्हेन आई स्टार्टेड, हम मैं फोटोशॉप पे पूरा पूरा वेब पेज डिजाइन करता था, एंड वाह, अब और उसको ऐसे हफ्ता हफ्ता लग जाता था एक पर्टिकुलर पेज को डिजाइन करने में, और अब 15 मिनट में भी एक वेब पेज डिजाइन हो जाता है। सो हम्म, लाइक आई विल से कि टूल्स हैव चेंज, बट ओवरऑल हम्म, फंडामेंटल अभी भी वही है कि यूजर माइंडसेट क्या होएगा, मेरा कंज्यूमर कौन होने हम्म, वाला है, हाउ द हम्म, यूजर इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द वेबसाइट, हम्म, वेबसाइट जो है हमारा बिजनेस है, बिजनेस क्या ऑफर करने वाला है। एंड वन थिंग विच आई लाइक अंडरस्टूड एज अ डिजाइनर, बहुत डिजाइनर्स क्या करते हैं कि दे डोंट फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, वो बस है ना टास्क पे फोकस करते रहते हैं। हम्म, जब तक आप ना बिजनेस नहीं हम्म, समझोगे कि आपकी कंपनी करती क्या है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि आपका कोर बिजनेस क्या है, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, बी इट एडवर्टाइजिंग, अ प्रोडक्ट, अ सास हम्म, प्रोडक्ट, हम्म, आपको अगर आपको हम्म, समझ में आ गया कि आपका बिजनेस क्या है, आपके कंज्यूमर क्या है, तो देन यू विल बी एबल टू लाइक क्रिएट बेटर हम्म, डिजाइन, बेटर यूजर एक्सपीरियंस। तो वो माइंडसेट बहुत हम्म, जरूरी है कि हम्म, अ, सवाल करना, अपने बिजनेस को समझना, हम्म, क्रॉस कोलैबोरेशन पे फोकस हम्म। करना, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं।